Welcome learners to the platform of Unlocking Wits. Unlocking Wits asked me to start a grammar content series which will enable learners to write, read, understand an error-free English. So there are clear objectives of this grammar series. This is, I say, grammar content series. So there are some objectives. Actually, when we read, write, listen, understand or speak, we have to face some complex type of sentences which confuse us. So to get the understanding of these kind of sentences, one has to go through deep into grammar. So friends, there are some clear-cut objectives of this grammar series. First, to polish the language skills of learners so that they could express themselves in error-free and grammatically sound manners. Second, understanding. Sometimes we study or we read some written content which are written in a very complex sentences. So we find difficulty in understanding those sentences. This grammar series will help learners understand these types of sentences properly and their understanding will be refined. Third, this grammar content series will enable learners to construct these kinds of complex sentences themselves. Next, the objective of this grammar series is to prepare students with some advanced grammar skills which will help them in competitive examinations like NDA, CDS, banking, SSC and so on. So this grammar series is going to be very helpful for you guys. This will the duration of the this grammar series will be 5 to 10 minutes, because above that grammar will bore you or may interest you also. But one has to be very consistent, one has to be very patient, and one has to be very laborious, industrious to understand, to have a sound knowledge of grammar. So go through this series patiently, consistently, constantly. तो मैंने आपको जैसे बता दिया है कि ये जो ग्रामर सीरीज़ है ये आपकी भाषाई कौशल को विकसित तो करेगी ही, आपकी समझ भी बढ़ाएगी अंग्रेज़ी में या अंग्रेज़ी भाषा में, और साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ख़ासतौर से जो NDA वगैरह में बैंकिंग का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा होता है इंग्लिश का, और उसमें इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपके लैंग्वेज स्किल्स की परीक्षा होती है। तो ये सीरीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी इसमें। और साथ ही साथ आप इस सीरीज़ के अंत तक, अगर आप इसको अंत तक फॉलो करेंगे और जो आपको इम्पॉर्टेंट एडवाइस है उनको फॉलो करेंगे, या जो आपको वर्क दिया जाएगा उसको फॉलो करेंगे, तो फिर जब आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सीरीज़ यू विल फाइंड योरसेल्फ इन अ पोजीशन दैट यू नो language better. First topic for this grammar content series is analysis. क्योंकि CBSE बोर्ड में या अब तो उत्तराखंड बोर्ड में भी ग्रामर को विस्तार पूर्वक नहीं पढ़ाया जाता है, तो अभी विद्यार्थियों को ये पता नहीं होता है कि एनालिसिस नाम का भी कोई टॉपिक होता है ग्रामर में। लेकिन एनालिसिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ग्रामर। और दरअसल ये जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ टॉपिक एनालिसिस, ये दूसरा जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊँगा सिंथेसिस, उसके लिए तैयारी है। तो एनालिसिस का मतलब होता है कि कोई जो सेंटेंस है उसके डिफरेंट पार्ट्स को अलग करना, टू सेपरेट द पार्ट्स एंड फ्रेगमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी वाक्य के, किसी भी सेंटेंस के पार्ट्स को अलग करना, ये है एनालिसिस। एनालिसिस के 3 स्टेज होते हैं। एनालिसिस, सॉरी ये पेन नहीं चला, ANALYSIS
ANALYSIS, एनालिसिस। एनालिसिस मतलब विश्लेषण। लेकिन ग्रामर में इसका अर्थ है, ग्रामर में इसका द मीनिंग ऑफ एनालिसिस इन ग्रामर इज टू सेपरेट द सेंटेंस, द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, द फ्रेगमेंट ऑफ सेंटेंस। तो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ एनालिसिस। फर्स्ट स्टेज separate clauses। I will tell you what the clause is. Second stage, to name the clause। मतलब आपने जो क्लॉज सेंटेंस से अलग कर दिया है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्लॉज इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस, बट एवरी पार्ट ऑफ सेंटेंस इज नॉट अ क्लॉज। क्लॉज वाक्य का हिस्सा तो है, सेंटेंस का हिस्सा तो है, लेकिन सेंटेंस का हर हिस्सा क्लॉज नहीं है। तो हमको वो हिस्सा आइडेंटिफाई करना है जो हिस्सा क्लॉज है, ठीक है। और क्लॉज क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। सेकंड है कि जो क्लॉज आपने आइडेंटिफाई कर लिया, सेपरेट कर लिया, उसका नाम क्या होता है, टू नेम द क्लॉज। एंड द थर्ड स्टेज इज टू नेम द सेंटेंस, टू नेम द सेंटेंस। तो आपने सेंटेंस के टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़े होंगे। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, दिस you have to name the sentence on the basis of its construction, its grammatical construction। मतलब व्याकरण की संरचना के आधार पर उस वाक्य को क्या कहा जाता है। उनको सिंपल सेंटेंस कहा जाएगा, या कंपाउंड सेंटेंस कहा जाएगा, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन के बेसिस में सेंटेंस 3 होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। उसका हम अध्ययन सिंथेसिस नाम के टॉपिक में करेंगे। तो एनालिसिस में आपको ये 3 चीज़ सीखनी होती है। एक, किसी सेंटेंस से क्लॉज को, अगर उसमें 2 क्लॉज हैं तो 2 को अलग कर देना, अगर एक ही है तो उस एक क्लॉज को सेंटेंस से बाहर कर लेना, या 2 क्लॉज हैं तो 2 क्लॉज को सेंटेंस से बाहर कर लेना। दूसरा, वो जो क्लॉज आपने सेपरेट किया है उनका नामकरण करना, उनका नॉमेनक्लेचर करना। और तीसरा, वो जो पूरा का पूरा सेंटेंस है, वो सेंटेंस किस टाइप का है, वो सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, ये पता लगाना। तो दिस इज व्हाट एनालिसिस मेक्स यू परफेक्टेड। अब we'll go in first stage। क्या? फर्स्ट स्टेज, what? To separate the clause। ठीक है। तो what the clause is? The very first question which arises is what the clause is। Clause is a part of sentence। Clause is a part of sentence which consists of a subject and a finite verb, FINITEVERB। मतलब क्लॉज सेंटेंस का वो पार्ट है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है। अब इसमें 2 बातें हैं कि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, और दूसरी बात फाइनाइट वर्ब क्या होती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे टू और हाउ टू पेन नहीं चल रहा है, हाउ टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। मतलब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन और उसके इक्विवेलेंट हो सकते हैं। नाउन एंड इट्स इक्विवेलेंट मे बी द सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। इसमें क्या है कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले नाउन सब्जेक्ट हो सकता है। एक सब्जेक्ट हो सकता है नाउन, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन हो सकता है। ठीक है।
जैसे हम ये कहते हैं कि दिस कंट्री इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी, तो इसमें दिस कंट्री है, कंट्री नाउन है, तो नाउन सब्जेक्ट है वो। दूसरा सब्जेक्ट हो सकता है प्रोनाउन। प्रोनाउन वो प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन जब मैं आपको सिंटेक्स के बारे में बता रहा हूँगा तो आपको प्रोनाउन के बारे में विस्तार से बताऊँगा। प्रोनाउन बहुत बड़ा विषय होता है। तो प्रोनाउन सब्जेक्ट ही हो सकता है, शी हो सकता है, और दे हो सकता है, और मैनी हो सकता है, अ फ्यू हो सकता है, सम हो सकता है। बहुत सारे प्रोनाउंस हैं जो सब्जेक्ट हो सकते हैं। तीसरा इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, हो सकता है। इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। एक्टिव, ये एक्टिव वॉइस में होता है। और टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस की वर्ब से। तो ये जो वर्ब है ये है इन्फिनिटिव वर्ब, ये इन्फिनिटिव है, तो ये भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। टू वॉक ये सब्जेक्ट है। टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है, जैसे टू बी अरेस्टेड बाय पुलिस, टू बी अरेस्टेड बाय पुलिस वॉज द वर्स्ट डे ऑफ हिज लाइफ। What was the worst day of his life? To be arrested by police. To be arrested by police is the subject of this sentence. तो ये to be वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट हो सकता है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट इन्फिनेटिव भी हो सकता है। तीसरा, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, चौथा किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट जीरेंड भी हो सकता है। जीरेंड मतलब द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ये जीरेंड है। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट ये हो सकता है ना। जैसे रनिंग इज बेटर देन जॉगिंग, ऐसा भी कहता है। रनिंग इज अ सब्जेक्ट। ठीक है। चौथा, प्रोवर्ब, या हम इसे कह सकते हैं फ्रेज। किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक फ्रेज भी हो सकता है, या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि एक पूरा का पूरा सेंटेंस भी किसी एक दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज नोन टू ऑल। इज नोन टू ऑल, व्हाट इज नोन टू ऑल? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दिस इज द सब्जेक्ट। तो हियर इन दिस सेंटेंस यू सी दैट द एंटायर सेंटेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ एन अनदर सेंटेंस। ओके, जैसे दैट वी कैनॉट ट्रस्ट आवर नेबर शुड बी द सेंटर ऑफ आवर फॉरेन एंड डिफेंस पॉलिसीज। दैट वी शुड नॉट rely or we should not trust, we should not rely, we should not trust our neighbor should be the part of our defense and foreign policy. Should be the part of defense and foreign policy. What should be the part of defense and foreign policy? That we should not rely on our neighbors. So we should not rely on our neighbors, yeah, we should not trust our neighbors. This is the part, this is the subject of this sentence. So we see that a phrase can be the subject of another sentence. 4, 5, clause. A clause I will tell you later, but you will have to keep this into your mind that a clause can be the subject of a sentence. For instance, what to do is a problem. क्या करें यार, बड़ी समस्या है, क्या करें, बड़ी समस्या। What to do is a problem. किस पर भरोसा करें समझ नहीं आता। Whom to believe is not coming into my mind.
Yeah, whom to believe is out of my mind. Is out of my mind. What is out of my mind? Whom I should believe. So whom I should believe is a clause. What to do is a clause. Where to go in this lockdown is very confusing. So where to go is a phrase, and this is the subject of this sentence. So I have told you, or I have provided you with some inputs. How many types of subject you face in a sentence? Noun, pronoun, infinitive, gerund, phrase and clause. Later we'll go into this matter in detailed manner. So we'll meet in the next episode of this series.